Hello everyone, this is Raman Kapoor. Welcome to my YouTube channel. In this video, I have taken a simple example on network analysis or electrical circuits. और उसको मैंने variety of methods से solve किया है. तो मेरे हिसाब से network analysis या electrical circuits को अच्छे से समझने के लिए सबसे best strategy यही है कि आप एक simple से example लीजिए और उसको variety of methods से solve कीजिए and try to arrive at the same result. So if this approach is there, it means the concepts on network analysis are good, right? और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि there is some other method which you have used to arrive at the same result, then please post your answer in the comment box and your method as well, right? So let us move forward to the question. So let us discuss our question. You can see the electrical circuit on the screen. You have to find the current I which is flowing through this 2 ohm resistor. So इस वीडियो का पर्पस है कि इस सिंपल एग्जाम्पल को हम बहुत सारे वेज से सॉल्व करें एंड वी शुड अराइव एट द सेम रिजल्ट. और नेटवर्क एनालिसिस को समझने का ये सबसे बेस्ट वे होता है. दैट इज precisely known as alternate method strategy, right? Okay, so if you observe the electrical circuit properly, this is an independent current source of value 8 amperes. This is a 2 ohm resistor, 2 ohm resistor, this is a 2 ohm resistor, and this is a 16 volt independent voltage source, right? So you have to think parallelly with me कि हम कैसे कैसे methods लगा के same result पे आ सकते हैं. What are the different ways that we can use to solve this particular question? So we have to find the current I which is flowing through this 2 ohm resistor. So let me first solve it using mesh current method, and that is my method 1. इसमें हमें क्या करना होगा, अगर आप इस 2 ohm resistor को ध्यान से देखें तो the current is already decided through this 2 ohm resistor with the help of the independent current source. It means this branch has the current of 8 amperes. This is I that we have to find, and if I manage to apply Kirchhoff's current law here, it means 8 is coming, I is leaving, so of course 8 minus I is leaving like this, right? इस नोट पे मैंने किरचॉफ्स करंट लॉ या केसीएल लगा दिया, तो 8 minus I is the current which is consumed by this 2 ohm resistor and the 16 volt battery. Fine. Okay, now what we have to do, let me mark this mesh as 1 and this mesh as 2 and mark the proper sign convention. See, 8 minus I current is flowing through this 2 ohm resistor. It means like this, plus minus. This I is downwards like this because resistors are passive elements, they are power absorbing elements, right? तो अगर मैं इस सेकेंड मेश में एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का लूप लगा दूं तो वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ I और मैग्नीट्यूड ऑफ I. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस नोड एंड ट्रेवर्स दिस लूप. तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ अगर मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाऊं, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट ऑल ऑफ यू नो हाउ टू अप्लाई KVL, so I can get, I usually consider the latter sign basically. So as we traverse, I get minus 2, 8 minus I. Again, latter sign of the 16 volt battery, it means minus. So this is minus 16. And if you observe here, this is plus, right? So this is plus 2I is equal to 0. Just solve it. So this is minus 16 plus 2I minus 16 plus 2I is equal to 0. Therefore, you get 4I is equal to 32, and you can simply say that I is equal to 32 by 4, that is equal to 8 amperes. तो अगर हम एग्जाम पर्पज से सॉल्व करें, मतलब अगर गेट के रेलेवेंस से इस पे बात करें, तो आई थिंक मेश करंट मेथड इज द मोस्ट रिकमेंडेड मेथड फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? क्योंकि सिर्फ एक केवीएल का लूप लगाना है और आपको आंसर मिल जाएगा. द करेक्ट आंसर इज 8 एम्पेयर्स. बट द पर्पज ऑफ दिस वीडियो रिमेन सेम. I have to solve this question from various other methods which are possible, because that is the best way to enhance the concepts, right? So 8 amperes is the correct answer. Let us see how we can get 8 amperes from other methods of networks. तो हमारा रिजल्ट तो हमें मिल ही चुका है, which is I is equal to 8 amperes. But let us solve the same circuit with the help of second method, which is node voltage method, जिसको हम नोडल एनालिसिस भी बोल देते हैं, राइट? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले नोड्स को मार्क कर लेते हैं. लेट अस टेक दिस नोड एज A, दिस एज B, दिस एज C, और ये जहां पर हमारी मैक्सिमम ब्रांचेस कनेक्ट हो रही है, इसको हम आगे जाके रेफरेंस नोड ले लेंगे या 0 वोल्ट पे कंसिडर कर लेंगे. दैट नोड इज टेकन एज D, राइट?
तो नोड वोल्टेज मेथड आप कैसे अप्लाई करोगे, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो लेट अस सी this branch, the current is already decided, which is 8 amperes. Fine. Okay, let me take a potential here, that is VB. इस नोड का मैंने एक पोटेंशियल अज्यूम कर लिया है which is VB, राइट। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम पहले इस नोड को रेफरेंस पे ले आते हैं। Effective way to solve, right? Maximum branches are connected to a single node. Let us take that node at reference और 0 वोल्ट, जिसको हम डेटम नोड भी बोलते हैं, राइट। तो ये 0 वोल्ट पे आ गया, तो अब ये नोड बी का जो पोटेंशियल है वो VB आ गया। इसका मतलब मैंने VD को 0 ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप 16 वोल्ट की इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को देखो तो 0 वोल्ट तो इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इसका मतलब ये जो VC है वो हमारा 16 वोल्ट्स पे आ गया, राइट। तो मैंने नोड्स का पोटेंशियल मार्क कर दिया है टेकिंग वन रेफरेंस नोड, ठीक है। तो नोड वोल्टेज मेथड का मतलब ये होता है कि आप KCL प्लस ओम्स लॉ लगाओगे। मेश करंट मेथड इज KVL प्लस ओम्स लॉ, राइट। इस नोड बी पे एक KCL की इक्वेशन लिख दूं तो आई कैन इजीली फाइंड आउट I, राइट। वी हैव टू फोकस ऑन I। ओके, लेट अस सी। चलो ध्यान से देखो, 8 amperes is coming here, I is leaving, and this is like this, right? I know the potential VC as 16 volts and node B has the potential VB. So node voltage method means I have to write the KCL equation in terms of node voltages, right? Fine. So 8 ampere is coming, right? तो 8 ampere split हो गया किस में? I can write it VB minus VD upon 2. अब ये स्टेप अगर आप में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। तो I इज द करंट फ्लोइंग डाउनवर्ड्स, तो ये नोड B का पोटेंशियल है VB, नोड D का पोटेंशियल है VD को हम बाद में 0 वोल्ट लिख देंगे। तो ये जो करंट I है जो 2 ओम रेजिस्टर में फ्लो कर रहा है वो VB माइनस VD की वजह से फ्लो कर रहा है, राइट। एंड VB माइनस VD by 2 इट मीन्स आई एम अप्लाइंग ओम्स लॉ बिकॉज V पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I into R, राइट। तो अल्टीमेटली मैं KCL इक्वेशन ही लिख रहा हूँ लेकिन नोड वोल्टेजेस की फॉर्म लिख रहा हूँ विच इज नोड वोल्टेज मेथड। सो VB माइनस VD by 2 प्लस ये जो BC वाली जो ब्रांच है उसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, किस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, VB माइनस VC अपॉन 2, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर यहाँ पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव लिख दूं पैसिव एलिमेंट पे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके, सो दैट इज फाइन। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 8 इज इक्वल टू VB माइनस 0 अपॉन 2 प्लस VB minus VC is already known with relation to the reference like this. So this comes out to be 16 is equal to VB plus VB minus 16. यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें बेसिकली VB मिल गया which is equal to 32 upon 2 which is equal to 16 volts. इसका मतलब अगर हम नोड वोल्टेज मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पोटेंशियल मिल गया नोड बी का, और नोड बी का अगर हमें पोटेंशियल मिल गया, VD का पोटेंशियल ऑलरेडी रेफरेंस है, तो हमें करंट I मिल जाएगा ओम्स लॉ लगाकर। तो ये क्वेश्चन नोड वोल्टेज मेथड से भी सॉल्व हो गया। इसका मतलब यू कैन से फ्रॉम ओम्स लॉ VB माइनस VD इज इक्वल टू IR, I into 2, therefore I is equal to VB क्या है हमारा अभी फाइंड आउट किया हमने, और VD हमारा 0 है अपॉन 2, C the result is again 8 amperes। इसका मतलब कोई सा भी मेथड जो मुझे एग्जाम में स्ट्राइक कर रहा है मैं उसको अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकता हूँ। The only condition is that you should know the proper sign convention, proper knowledge of laws is required. If that is clear, half of the game of networks is clear, right? So again I is equal to 8 amperes with the help of node voltage method. तो आपने जो फर्स्ट टू मेथड्स देखे हैं विच इज मेश करंट मेथड एंड नोड वोल्टेज मेथड, उसमें हमने सर्किट को कहीं इधर उधर नहीं किया, मतलब उसको सिंप्लीफाई नहीं किया है हमने, ठीक है। तो एज इट इज जो नोड्स और ब्रांचेस थी हमने उसको वैसे ही रहने दिया और उसमें ही एक सिंपल टेक्निक लगा के आंसर निकाल दिया। तो अगर हम इस सर्किट को देखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप या तो मेश करंट मेथड या नोड वोल्टेज मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक्स ऑफ नेटवर्क्स।
पर अगर आपको कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझना है, जो कि मेरा इस वीडियो का पर्पस है, तो मैं एक तीसरा मेथड भी इंट्रोड्यूस करूंगा, विच इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो आप अगर कॉन्सेप्ट्स में अच्छे हैं तो आप बहुत सारे मेथड से सेम रिजल्ट पे आ सकते हैं, राइट। सो लेट अस डील विद अनदर मेथड, source transformation and simplification. Now, these two words are very important, source transformation and simplification. It means यहाँ पर इस सर्किट में हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमें उस ब्रांच को डिस्टर्ब नहीं करना है। उसके अलावा अगर हमारा सर्किट सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम उसको कर सकते हैं, राइट। नाउ जस्ट सी द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। अगर कोई रेजिस्टर या फिर कोई पैसिव एलिमेंट एक करंट सोर्स के साथ सीरीज में लगा हुआ है, तो सिंप्लीफिकेशन में हम उसको रिमूव कर सकते हैं। लेट मी से इट अगेन, a resistor connected in series to an independent current source can be removed in simplification. It does not mean that that resistor does not have the relevance in the circuit. Of course उसमें कुछ पावर एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में हम उसको रिमूव कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोई रेजिस्टर एक वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, तब भी वो रेजिस्टर रिडंडेंट हो जाता है, मतलब सिंप्लीफिकेशन में आप उसको रिमूव कर सकते हो, राइट। तो हमारा मेथड 3 सिंप्लीफिकेशन और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे है। तो आप देखना इसमें कैसे सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो 8 एम्पेयर का करंट सोर्स है, इसके साथ ये 2 ओम का जो रेजिस्टर है वो सीरीज में लगा हुआ है, और हमारा जो पर्पस है वो इस ब्रांच से है, क्योंकि हमें करंट आई निकालना है। तो फॉर सिंप्लीफिकेशन आई कैन रिमूव दिस 2 ओम रेजिस्टर, राइट, बिकॉज इट इज रिडंडेंट, राइट, ओके। और दूसरी चीज, ये 2 ओम का रेजिस्टर और ये 16 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है, इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया जा सकता है। इसका मतलब a voltage source in series with a resistor can be converted to a current source in parallel with the same resistor. This is known as source transformation, voltage source और current source का source transformation. तो अगर मैं ये दोनों चीजें एक साथ अपने सिंप्लीफिकेशन में लगाऊं तो ये कैसे दिख सकता है? See, this 8 amperes remain same. You know the concept, a resistor in series with a current source is redundant. It can be removed in simplification. और ये ब्रांच तो हमारी एज इट इज रहेगी, इसको हमें थ्रू आउट दी सॉल्यूशन डिस्टर्ब नहीं करना है, राइट दिस। और ये जो 2 ओम रेजिस्टर है ये यहाँ पैरेलल में आ जाएगा, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज सोर्स एक करंट सोर्स आ जाएगा, जिसको हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ऐसे, राइट। अब इसकी वैल्यूज क्या होगी, ये तो हमें पता है 8 एम्पेयर है ये, और ये हमारा 2 ओम्स है, और ये करंट वही है जो हमें निकालना है, आई, राइट। अब क्या हुआ है, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 2 आ गया इधर। अब ये वैल्यू क्या होगी, ये करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 16/2, इजंट इट सो, दैट इज 8 एम्पेयर्स। इसका मतलब 16 वोल्ट इन सीरीज विद अ 2 ओम रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू 8 एम्पेयर्स विद अ पैरेलल 2 ओम रेजिस्टेंस, राइट। तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा हो गया, मतलब हमने सर्किट को सिंप्लीफाई कर दिया है और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कर दिया है। क्या इस सर्किट को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहां पर देखो, 2 करंट सोर्सेस पैरेलल में लगी हुई हैं, क्या हम एक कंबाइंड करंट सोर्स लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट सोर्स, बोथ आर पॉइंटिंग अपवर्ड्स, इट मींस the resultant current source will be added up, it means it will become 8 plus 8, 16. So अगर हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करें और कुछ ऐसे लिख दें इसको, ये और ये हमारा ये ऐसे है और ये ऐसे है, राइट, लाइक दिस। तो आप यहाँ पर तो रेजिस्टेंस सेम है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं तो आप साथ साथ लिखते रहना, दिस इज 2 and this becomes 16 amperes, 8 amperes plus 8 amperes 16 amperes, right। तो ये मेथड अगर आपको एग्जाम में स्ट्राइक करे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और अब बताने की जरूरत नहीं है कि ये आई क्या होगा, क्योंकि 2 ohms और 2 ohms they are the same value, it means current will split out equally, it means 16 अगर यहाँ से आ रहा है तो यहाँ 8 चला जाएगा और यहाँ भी 8 चला जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है, राइट। सो व्हाट इज आई, ये तो सेम रिजल्ट आ गया, 8 एम्पेयर्स। तो ये हमारा मेथड 3 है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। हमने सर्किट को सिंप्लीफाई भी किया है और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है। तो 2 सिंप्लीफिकेशंस अप्लाई किए मैंने, 2 करंट सोर्सेज को ऐड किया जो पैरेलल में लगे हुए थे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, राइट, बोथ
बोथ फॉर पॉइंटिंग अपवर्ड, सो 8 + 8 = 16। और जो सिंप्लीफिकेशन मैंने फर्स्ट स्टेप में किया, मैंने 2 ओम रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया क्योंकि वो करंट सोर्स के साथ सीरीज में था, इसको रिडंडेंसी बोलते हैं, राइट। सो 8 एम्पेयर्स यहाँ से भी आ गया। सो दिस इज आवर मेथड 3। सो दैट ब्रिंग्स अस टू आवर मेथड 4 विच इज सुपरपोजिशन थ्योरम। तो जनरली मैं इस क्वेश्चन के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं मेश करंट मेथड या फिर नोड वोल्टेज मेथड ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वही आपको इमीडिएटली स्ट्राइक करेगा। लेकिन कभी भी हम जब सर्किट्स में दो सोर्सेज लगे हुए देखते हैं तो हमारा दिमाग सुपरपोजिशन थ्योरम पे भी चला जाता है। सुपरपोजिशन थ्योरम ज़्यादा एप्लीकेबल तब है अगर एक सोर्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, मतलब डीसी सोर्स है, और दूसरा ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, तब तो आपको सुपरपोजिशन थ्योरम ही लगाना है। लेकिन इस क्वेश्चन को हमें सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को एनहांस करने के लिए समझना है, इसलिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम से भी इसका रिजल्ट निकालेंगे, राइट। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? You know the principle of superposition. It means you have to consider the effect of one source at a time, keeping the other sources turned off, and then you have to algebraically add the responses, right? That is known as the principle of additivity and homogeneity, जिसको हम principle of superposition बोलते हैं, right? इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे ये करंट I निकालना है तो मैं सबसे पहले 8 एम्पेयर करंट सोर्स का इफेक्ट कंसिडर करूंगा और 16 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है उसको टर्न ऑफ कर दूंगा, मतलब उसको शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, बिकॉज V = 0 मीन्स शॉर्ट सर्किटेड। सो यू कैन से आई एम कंसिडरिंग 8 एम्पेयर करंट सोर्स कीपिंग 16 वोल्ट टर्न ऑफ, मतलब वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और हम इंडिविजुअली रिस्पॉन्स देखेंगे कि करंट I जो 2 ओम रजिस्टर में हमें निकालना है वो 8 एम्पेयर सोर्स के एप्लीकेशन से कितना आ रहा है, और फिर हम सेकंड स्टेप करेंगे, 16 वोल्ट की जो वोल्टेज सोर्स है उसको टर्न ऑन करेंगे और 8 एम्पेयर की करंट सोर्स को टर्न ऑफ कर देंगे, और फिर देखेंगे कि करंट I कैसे आ रहा है, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर डायरेक्शंस वी विल ऐड द रिजल्ट्स। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगर मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूं इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली, इसका मतलब एक करंट सोर्स मुझे यहां से मिलेगा जो है इधर, दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दी वोल्टेज सोर्स इज टर्न्ड ऑफ, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया वोल्टेज सोर्स हमारा। तो हमारा जो सर्किट है वो ऐसे आ गया, लाइक दिस। तो अब इस I को मैं I नहीं लिखूंगा, मैं इसको I1 लिख दूंगा, क्योंकि ये I1 आपका करंट 2 ओम रजिस्टर में तब है जब हम ये वाली कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, 8 एम्पेयर सोर्स कंसिडर्ड एंड 16 वोल्ट टर्न्ड ऑफ। तो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, और ये आपका 8 एम्पेयर है, राइट। इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इस सर्किट को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 8 एम्पेयर करंट यहाँ से आ रहा है, मतलब इस ब्रांच में करंट 8 एम्पेयर है, और सिंप्लीफिकेशन में आप इस 2 ओम को फिर से रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज अगेन अ पैसिव एलिमेंट इन सीरीज विद अ करंट सोर्स, राइट। इट कैन बी रिमूव्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन, राइट। तो अगर 8 एम्पेयर करंट यहाँ से आ रहा है और ये 2 ओम रेजिस्टर और 2 ओम रेजिस्टर इक्वल वैल्यू के हैं, और ये दोनों के दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, अगर आप ध्यान से इनको देखो, बिकॉज दे आर शेयरिंग कॉमन नोड्स लाइक दिस, राइट। सो इट मीन्स 8 is coming, so this I1 would be 4 and the remaining 4 will come here, right। 4 एम्पेयर और 4 एम्पेयर में आपका करंट स्प्लिट हो जाएगा। इसका मतलब if 8 एम्पेयर करंट सोर्स is considered with 16 volt turned off, you get I1 as 4 एम्पेयर्स। अब यहाँ पर कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं, वो 4 एम्पेयर्स ही आंसर को छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको 16 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है उसका भी इफेक्ट कंसिडर करना है, और तब आपका 8 एम्पेयर करंट सोर्स टर्न ऑफ रहेगा। करंट सोर्स का टर्न ऑफ होने का मतलब I = 0 विच इज ओपन सर्किटेड, राइट। तो हम अपनी सेकेंड लाइन लिखेंगे, कंसिडरिंग द 16 वोल्ट सोर्स विद 8 एम्पेयर टर्न ऑफ, राइट। तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब 8 एम्पेयर सोर्स इज टर्न्ड ऑफ, मतलब ये वाला जो करंट सोर्स है वो टर्न्ड ऑफ है, इसका मतलब ओपन सर्किटेड है। तो ये वाली लाइन जो है वो हमारी ओपन सर्किट हो गई। इसका मतलब ये 2 ओम का जो रेजिस्टर है वो रिडंडेंट हो गया, क्योंकि इसमें तो कोई करंट ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका सर्किट कैसा दिखेगा अब? इट मीन्स योर सर्किट लुक्स लाइक दिस, राइट। ये ऐसा आपने बना दिया, राइट। सो दिस होल इज रिडंडेंट, राइट। तो एक ही लूप बन गया आपका। इसका मतलब दिस इज 2, लेट अस टेक दिस एज I2। ये I2 वो करंट है 2 ओम रेजिस्टर में जो 16 वोल्ट का इन्फ्लुएंस है, राइट। सो दिस इज 2 एंड दिस इज 16 वोल्ट्स,
तो एक लूप बनेगा यहाँ से। तो व्हाट इज I2? I2 इज सिंपली 16/2 + 2 विच इज 4, विच इज 4 एम्पेयर्स, राइट। तो अगर आप इंडिविजुअली सोर्सेज को कंसिडर करेंगे और रिमेनिंग सोर्सेज आर टर्न्ड ऑफ, then you can get individual response. You can add the responses algebraically and that is your complete response. This is principle of superposition. तो जब एक से ज़्यादा सोर्सेज हमारे सर्किट में लगे होते हैं तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम को भी कभी कभी प्रेफर कर देते हैं, राइट। तो व्हाट इज द आंसर? अब यहाँ पर 4 एम्पेयर्स को आंसर मत समझ लेना आप, आपको दोनों इफेक्ट्स को ऐड करना है विथ प्रॉपर डायरेक्शंस, और दोनों में ही करंट आपका डाउनवर्ड्स है, इसका मतलब डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। अगर एक में करंट डाउनवर्ड होता और एक में अपवर्ड होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाता, राइट। तो व्हाट इज I अल्टीमेटली? I इज I1 प्लस I2 विच इज 4 + 4 विच इज 8 एम्पेयर्स। तो यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गई कि सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और आंसर तब भी 8 एम्पेयर्स ही आएगा। तो मैंने 4 मेथड्स आपको बता दिए हैं अभी तक, राइट। एक और मेथड बताएंगे, उसके बाद भी अगर आपको कोई लगे कि कोई और मेथड है कि उससे भी सॉल्व हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिजल्ट मेंशन करिए। तो फाइनली लेट अस डिस्कस द सेम क्वेश्चन यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और मैक्सिमम क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो थेवेनिन्स थ्योरम अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें इस पूरे सर्किट को थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब इसको अगर क्लियर करना चाहें तो जिस ब्रांच में आपको करंट निकालना है उस ब्रांच के अक्रॉस आप टर्मिनल्स मार्क कर लो। लेट अस टेक दिस एज A and B, राइट, एंड लेट मी टेक दिस एज द रेफरेंस नोड फॉर सिंप्लीफिकेशन, राइट। तो इस A और B के अक्रॉस हमें थेवेनिन्स थ्योरम लगाना है। इसका मतलब हमें थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालना है, उसकी हेल्प से हम इस करंट I को इवेल्युएट करेंगे। इट मीन्स थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है हमारा? यू हैव अ Thevenin's voltage, you have a Thevenin's resistance, and then you mark the terminals, right, like this। क्योंकि हमें निकालना अल्टीमेटली I है तो उसके अक्रॉस हमने टर्मिनल्स मार्क कर दिए, and those terminals are A and B, and what is the element connected between A and B? That is equal to 2 ohms, right। और यही करंट हमें निकालना है I, और इसको हम मार्क करेंगे हमारा VTH विच इज दी थेवेनिन्स वोल्टेज और ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस दीज टर्मिनल्स, एंड RTH इज बेसिकली थेवेनिन्स रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम दीज टर्मिनल्स कीपिंग द इंडिपेंडेंट सोर्सेज टर्न्ड ऑफ, राइट। अब आप देखिए अगर आप इस सर्किट को इस सर्किट में रिजॉल्व कर देंगे तो सिर्फ 2 रेजिस्टेंस है जो सीरीज में लगे हुए हैं, RTH और 2 ohms, राइट। तो आप इजीली करंट निकाल दोगे। व्हाट इज दिस करंट? This is I. So what is I ultimately? I would be equal to VTH upon RTH plus 2. तो अल्टीमेटली थेवेनिन्स थ्योरम से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इवैल्यूएट करने के लिए आपको पहले थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो चलो थेवेनिन्स वोल्टेज निकाल देते हैं पहले, राइट। थेवेनिन्स वोल्टेज, इट मीन्स दैट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स A and B। इसका मतलब आप 2 ohm रेजिस्टर को रिमूव कर देंगे और इस ब्रांच को ओपन सर्किट अज्यूम करेंगे और फिर देखेंगे यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज AB अगर मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब दिस इज VA माइनस VB विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू VA। वाई? बिकॉज VB आई हैव अज्यूम्ड टू बी एट रेफरेंस, इट मीन्स दैट इज 0 वोल्ट। तो अल्टीमेटली अगर मैं नोड A का पोटेंशियल निकाल दूं तो वही हमारा थेवेनिन्स वोल्टेज है, ठीक है। और हमें ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है, इसका मतलब दिस सर्किट इज ओपन। तो अगर इसको हम डिफरेंट ड्रॉ करें इधर तो सर्किट कैसा दिखेगा हमारा? ये, राइट। सोर्सेज आपको इंटैक्ट रखने हैं ऐसे, लाइक दिस। सो बेसिक नेटवर्क्स की नॉलेज से ये सॉल्व हो जाएगा, लाइक दिस। सो आई हैव टू इवैल्यूएट दिस VA, this is 2, this is 8, this is 2, this is 16, राइट। अब क्योंकि A और B टर्मिनल्स वाली जो ब्रांच है वो ओपन सर्किट है तो उसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, राइट। इसका मतलब 8 एम्पेयर्स अगर यहाँ से आ रहा है तो इधर भी 8 एम्पेयर्स ही जा रहा है, राइट। तो एक सिंगल लूप बन गया ये। तो यहाँ से हम VA निकाल सकते हैं कि नहीं? और आपको पता है कि मैंने इसको रेफरेंस नोड ले रखा है, मतलब 0 वोल्ट ले रखा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक
ओम्स लॉ की इक्वेशन लगा दूं इस 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस इधर, तो क्या मैं VA को फाइंड आउट कर सकता हूं कि नहीं? इसका मतलब करंट इज फ्लोइंग like this in this 2 ohm resistor and VB is at 0 volt which is reference. It means ये वाली जो नोड है वो 16 वोल्ट पे आ गई, right? Therefore applying Ohm's law I can say VA minus 16 is simply equal to 2 into 8 which is equal to 16. यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से आ गया हमारा VA which is ultimately equal to VAB which is ultimately equal to V open circuit which is nothing but V Thevenin that is equal to 32 volts, right? तो 32 volts हमारा Thevenin's voltage है, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज है, right? और अब हमें निकालना है VTH, आ गया हमारा RTH निकालना है। RTH is the equivalent Thevenin's resistance seen from the terminals A and B keeping independent sources turned off। इसका मतलब वोल्टेज सोर्सेज आपकी, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आपकी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी बिकॉज V इज इक्वल टू 0, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगी, मतलब I इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर मैं थेवेनिन्स रेजिस्टेंस यहां से देखूं तो ये तो ओपन सर्किट हो गया, राइट? इसका मतलब ये तो चला गया आपका, और ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया लाइक दिस, लाइक दिस। सो दिस इज RTH। तो टर्मिनल्स A और B से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है आपको? इधर लेफ्ट वाली ब्रांच तो ओपन सर्किट हो गई, ठीक है, तो आपको सिर्फ राइट में थेवेनिन रेजिस्टेंस देखना है, और 16 वोल्ट आपकी जो वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो व्हाट इज RTH? RTH इज सिंपली 2 ohms। तो इसका मतलब सर्किट क्या हो गया आपका? VTH हो गया आपका 32, RTH हो गया आपका 2, और इस लूप में जो करंट है वो है I, और वही हमें निकालना है। तो व्हाट इज I? I is VTH upon RTH plus 2 which is equal to 32 upon 2 plus 2 that is equal to 32 upon 4 that is 8 amperes। तो आपने ये समझ लिया कि 5 मेथड्स मैंने आपको बताया और पांचों मेथड से आपका आंसर 8 एम्पेयर्स आ गया। बट अगर मैं इस क्वेश्चन को एज इट इज लूँ तो आई वुड प्रेफर मेथड 1 एंड मेथड 2 बिकॉज दैट इज ईजियर टू अराइव एट द रिजल्ट, राइट? अदरवाइज सारे मेथड्स बहुत ईजी हैं, और ये क्वेश्चन का पर्पस यही था कि आपको बहुत सारे मेथड्स यूज करके अगर सेम रिजल्ट पे आना आता है नेटवर्क एनालिसिस में, तो इसका मतलब आपके नेटवर्क्स के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। तो एक क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको 5 मेथड्स बताए। इसके अलावा भी अगर आपको और कोई मेथड लगता है कि हम ऐसे भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पोस्ट करिए और बताइए आपने कौन से मेथड को यूज़ करके 8 एम्पेयर्स को इवेल्युएट किया है, राइट? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I will be bringing more videos like this. Keep posting your comments and keep sharing. Thank you.